Now we study suicide as social fact, a comparative method. Now Durkheim treated suicide as not as personal act but as a social fact, something shaped by society. He used a comparative method to study it across countries and groups, identifying patterns that could not be explained by individual psychology alone. So Durkheim wanted to establish sociology as science. So for this, he did a study in suicide in sociology in 1897. Suicide, a study in sociology in 1897. Now, this Durkheim study on suicide was done by using the methodology outlined in his work, The Rules of Sociological Method, which he did in 1895. So Durkheim had already written about how sociology should be studied like natural sciences. He applied those rules while researching suicide, using data, classifying types, and explaining patterns through social integration and regulation. Durkheim argued that his research on suicide argued that real laws are discoverable, that social phenomena obey laws in the same way as natural phenomena. And this is the influence of Auguste Comte. This is the core of the positivist approach. Just like laws of physics exist, Durkheim said that there are laws of society, like how lack of social bonds leads to higher suicide rates. Durkheim said suicide was not simply an individual act, but a product of social forces external to the individual. Its causes are to be found in society, that is socially determined. So Durkheim emphasized that the root cause of suicide is not individual depression or mental illness, but social disconnection, breakdown of norms, or lack of belonging. For example, if we study farmer suicides in India, they are often seen as personal failures, but Durkheim would argue that they are due to economic distress, policy failure, and social isolation, which are social factors. So its causes are to be found in society. Now the causes are product of social facts which are independent of individual. So this means that suicide rates don't depend on individual personalities. They are influenced by how connected or regulated a person is within a society. How connected or regulated a person is within a society. Durkheim began his study with detailed analysis of official statistics on suicide from a number of European countries. So he used secondary data. This is secondary data, which positivists prefer to study patterns. His use of official records laid the foundation for sociological research relying on large-scale data. Durkheim discovered that in each society, the suicide rate was fairly constant over a period of years. So what does this mean? This means that he observed consistency. Suicide rates did not randomly change. This constancy suggested underlying social causes, not personal randomness. And there were significant differences in the suicide rate between societies and between social groups within each society. There were significant differences in the suicide rate between societies and between social groups within each society. This means this is the key to the comparative analysis. So we are comparing here. For example, some religious or communities showed higher rates than others, hinting at different levels of integration and regulation. From these observations, Durkheim argued that suicide rates should be regarded as social facts. So because suicide rates are patterned, measurable, and not dependent on individual, suicide rates meet all the criteria of a social fact. An explanation of differing rates of suicide therefore lies in examination of society rather than exploration of consciousness of individuals. So this separates sociology from psychology. Sociology studies structures, norms, relationships, not inner thoughts or emotions. So sociology versus psychology. यहाँ पे explain होता है. Now analysis of suicide rate, relationship with a range of social facts, comparative analysis. तो यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे डरखाइम जब इसको सुसाइड रेट को पढ़ रहे हैं बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज एंड बिटवीन सोशल ग्रुप्स विद इन ईच सोसाइटी, तो कौन कौन से उन्होंने इस तरह के ग्रुप्स लिए थे. सो डरखाइम कंपेयर्ड ग्रुप्स लाइक रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एज टू सी हाउ लेवल्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन अफेक्टेड सुसाइड. तो प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स, सिटी dwellers वर्सेस रूरल, अनमैरिड वर्सेस मैरिड, ओल्डर एडल्ट्स वर्सेस यंगर एडल्ट्स. तो प्रोटेस्टेंट्स इनमें जो रिलीजियस सोसाइटी यदि देखें तो प्रोटेस्टेंट्स में हायर रेट था सुसाइड का कंपेयर टू कैथोलिक्स, और सिटी dwellers में ज़्यादा था कंपेयर टू रूरल. अगर हम डोमेस्टिक सोसाइटी देखें तो जो अनमैरिड थे उनमें ज़्यादा था
सुसाइड रेट कंपेयर टू मैरिड, एंड उस मैरिड में भी जो मैरिड विद चिल्ड्रन थे उनमें कम था सुसाइड रेट, और फिर जिनके ज्यादा बच्चे थे उनमें और कम सुसाइड रेट था। ओल्डर एडल्ट्स वर्सेस यंगर एडल्ट्स में देखें तो ओल्डर एडल्ट्स में, खासकर वैसे ओल्डर एडल्ट जो अनमैरिड है और उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनमें ज्यादा रेट ऑफ सुसाइड था कंपेयर टू द यंगर एडल्ट्स। अब हम आगे देखेंगे सुसाइड रेट्स एंड लेवल्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। सो डरकम आर्ग्यूड दैट ग्रेटर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन सोशल ग्रुप्स द लेस लाइकली दे वर टू कमिट सुसाइड। और ये सोशल इंटीग्रेशन है क्या? इट इज मेजर्ड बाय द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स। तो एक पर्सन के कितने सोशल रिलेशनशिप्स हैं। जैसे अगर हम डोमेस्टिक सोसाइटी में देखें तो अनमैरिड पर्सन्स हैव अ हायर रेट ऑफ सुसाइड व्हेन कंपेयर टू मैरिड पीपल विदाउट चिल्ड्रन, हु हैव अ हायर रेट ऑफ सुसाइड व्हेन कंपेयर टू मैरिड पीपल विथ चिल्ड्रन। और अगर हम रिलीजियस सोसाइटी में देखें तो Durkheim found out that Protestants have a higher rate of suicide when compared to Catholics. Why? Because Protestant Church encourages its members to develop their own interpretation of religion. तो वहाँ integration कम है, whereas Catholic religion integrates its members more strongly into a religious community. तो ये समझ में आता है कि in a highly integrated social group, control over the behavior of individuals is strong, and therefore there will be considerable moral pressure against suicide. और इससे हमको पता चलता है हमारा फोर्थ उसके कैरेक्टरिस्टिक कंस्ट्रेंट कि वो कोर्सिव इन नेचर होता है, सोशल फैक्ट। तो सुसाइड रेट के एज अ सोशल फैक्ट के लिए हमने तीन चीजें पहले देखी थी कि वो एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल है, नंबर वन, नंबर टू इंडिपेंडेंट है, एंड नंबर थ्री जनरलिटी। जनरलिटी मतलब कि डरकहाइम had already discovered that in his society the suicide rate was fairly constant over a period of time. तो सुसाइड रेट शोड पैटर्न्स अक्रॉस टाइम एंड प्लेस। उन्होंने सोशल ग्रुप्स के और सोसाइटीज में कंपेयर किया था, उन्होंने पाया कि उसमें पैटर्न्स हैं। और एक और चीज कि ये जो हमें कांस्टेंट दिखता है सुसाइड रेट रिगार्डलेस ऑफ द इंडिविजुअल्स, इससे भी हमें पता चलता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, देयर इज अ जनरलिटी टू इट, एंड कोर्सिव इन नेचर, मतलब जितना ज्यादा इंटीग्रेशन होगा उतना सुसाइड रेट कम होगा और मॉरल प्रेशर बना रहेगा इंडिविजुअल पे अगेंस्ट सुसाइड। एंड सिमिलरली द ग्रेटर हिज सोशल आइसोलेशन, जितना वो सोसाइटी से मतलब आइसोलेटेड रहेगा, the less the individual participates as a social being. As a result, his life lacks purpose and meaning. तो वैसे में फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं कि study of suicide showed that behavior was a product of social facts rather than individual motives. ये तो क्लियर हो गया है कि इंडिविजुअल मोटिव पे ध्यान नहीं दिया गया, और सुसाइड रेट एज अ सोशल फैक्ट को दूसरे सोशल फैक्ट्स जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स और मैरिटल स्टेटस और एज और उन चीजों में ढूंढा गया। Study of suicide showed that behavior was a product of social fact rather than individual motives. और इसके द्वारा हमने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को डिफरेंशिएट भी किया। Although suicide appears to be a uniquely personal and private act, its causes lie in the nature of social groups. It is therefore a product of social forces which are external to and act upon the individual. तो ये external to the individual है। By showing that suicide rates varies inversely with degree of integration, मतलब जितना ज्यादा इंटीग्रेशन होगा उतना कम सुसाइड रेट होगा। It varies inversely of which the individual forms a part. Durkheim claimed to have demonstrated that real laws are discoverable from the observation of human behavior. तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है कि डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सुसाइड रेट घटते जाता है। और इसके इस स्टडी से और भी इम्पैक्ट हुआ कि Durkheim study of suicide has often been taken as a model for research methodology in sociology. Number one. Number two, in Durkheim's terminology, human behavior is determined by social facts. तो हमने इससे क्या क्या चीज समझा है, मतलब Durkheim ने ये जो स्टडी की इसको उन्होंने क्यों क्यों क्या क्या कारण की वजह से किया है। एक तो ही वांटेड टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज साइंस, तो उन्होंने उसके साइंटिफिक
कारण को, सोशियोलॉजी को एज अ साइंस साइंटिफिकली उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जैसे कि सुसाइड, जो कि बहुत पर्सनल इन नेचर देखा जाता है, बट उनका कहना था कि नहीं, इसको हम साइंस की तरह स्टडी करेंगे और इंडिविजुअल के कारण को नहीं देखते हुए सोशल फैक्ट्स, जो दूसरे सोशल फैक्ट्स में हैं, उसमें उनके कॉजेस को ढूंढेंगे। तो उन्होंने इसको सोशियोलॉजी को इस्टेब्लिश करने की किया एज साइंस, नंबर वन। नंबर टू, ही ऑल्सो वांटेड टू डिफरेंशिएट सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी, इसलिए उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट भी चूज किया जहाँ पे हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस न देख के सोसाइड को सोसाइटी में एक्सप्लोर करेंगे कि किन कारणों से कौन कौन से सोशल फैक्ट की वजह से डिफरेंट रेट ऑफ सुसाइड होता है। तो सोशियोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी, नंबर टू। नंबर थ्री, he also wanted to establish a research methodology in sociology, मतलब कि he this is seen as a model for research methodology in sociology, कैसे इसको उन्होंने पढ़ा है, कैसे इसको स्टडी किया है, उसको फ्यूचर में भी आगे भी यूज किया गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि डर्कहाइम्स ट्रीटमेंट ऑफ सुसाइड रेट एज सोशल फैक्ट, इट मीट्स ऑल द फोर क्राइटेरिया। तो यूपीएससी का ये जो क्वेश्चन आया था 2024 का, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है, एक मिनट दिखा रहा है फिर से, हाँ, डिस्क्राइब वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल फैक्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक्सटर्नैलिटी, इंडिपेंडेंस, कोअर्सिव एंड जनरलिटी। और इसमें एक क्वेश्चन और था कि हाउ इज द रेट ऑफ सुसाइड अ सोशल फैक्ट। यहाँ पे सुसाइड नहीं, रेट ऑफ सुसाइड वर्ड यूज हुआ है, अ सोशल फैक्ट। तो वो भी हमने इसको पूरा स्टडी किया है कि रेट ऑफ सुसाइड कैसे एक्सटर्नल, इंडिपेंडेंट, जनरलिटी एंड फाइनली कंस्ट्रेंट। और इसको भी हम यहाँ पे समराइज करते हैं कि suicide as a social fact has been studied with respect to other social fact as in religion, marriage, urban life, family, इसमें इसको स्टडी किया गया है। So it is external to the individual, exist outside the individual. So जो जिसकी वजह से suicide rates हैं, वो are social, these factors are socially produced. Number two, independent. They don't depend on the individual but on the nature of society itself. So each society has particular suicide rate. कंस्ट्रेंट, सोशल फैक्ट्स एक्सर्ट मॉरल फोर्स ऑन अस, मतलब अगर हमारा लो इंटीग्रेशन होगा तो सुसाइड रेट ज्यादा हो जाएगा, और अगर हाई इंटीग्रेशन होगा तो कम होगा, जैसे कि प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स में। एंड जनरलिटी, व्हाट डज इट मीन? दैट सुसाइड रेट्स आर जनरल, मीनिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव लाइफ ऑफ सोसाइटी, दीज आर नॉट आइसोलेटेड इवेंट्स। तो इसमें इंडिविजुअल को न देख के एक जनरल कांस्टेंट रेट, हर सोसाइटी का अपना एक सुसाइड रेट का, उसको स्टडी किया गया है। तो एक्सटर्नैलिटी, इंडिपेंडेंस, कंस्ट्रेंट एंड जनरलिटी, इन चारों फैक्टर्स को वो सुसाइड रेट मीट करता है, इस चारों क्राइटेरिया को, इसीलिए इट इज सीन एज अ सोशल फैक्ट। Now we come to types of suicide. For this I have incorporated Blue Book page number 888 to 890. So as we discussed earlier, कि Durkheim wanted to establish sociology as science. He also wanted to differentiate between sociology and psychology. Also to create a research methodology in sociology, जो कि आगे future model की तरह use हुआ। और उनका एक और था कि to understand the relationship between individual and society. तो इंडिविजुअल सोसाइटी के बीच रिलेशनशिप अगर समझने का प्रयास किया जाए तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक हो सकता है कि इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप। तो इंडिविजुअल जब किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उसके सभी नॉर्म्स, वैल्यूज, उसके कस्टम्स, बिलीव्स, रूल्स, रेगुलेशन, सभी चीज़ों को सीखते हैं, और उस प्रोसेस की वजह से सोसाइटी में वो इंटीग्रेट होते हैं। दूसरी तरफ सोसाइटी सोशल कंट्रोल के द्वारा इंडिविजुअल को रेगुलेट भी करता है। तो दो हमारे पास फैक्टर्स हो जाते हैं, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे डर्कहाइम ने चार टाइप से सुसाइड को डिवाइड किया है, अल्ट्रुइस्टिक, इगोइस्टिक, एनोमिक एंड फर्टिलिस्टिक। एक एक करके हम इसको समझेंगे। यहाँ पे एक और चीज को मैं बताना चाहती हूँ कि डर्कहाइम ऑफ कोर्स फंक्शनलिस्ट अप्रोच से चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पुराने वीडियोस में आप जाके देखिएगा फंक्शनलिज्म का, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है, द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टडीड बाय फंक्शनलिस्ट। तो वहाँ पे वो इंटीग्रेशन पे बहुत फोकस करते हैं, और ये इंटीग्रेशन कैसे होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू कंसेंसस। ये मैं इस चीज़ को यहाँ पर वापस से आपको रिमाइंड कर देना चाहती हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? मतलब कि हाउ वेल यू आर कनेक्टेड टू अदर्स,
कितना ज़्यादा हम बाकी लोगों से जुड़े हुए हैं सोसाइटी में, अपने सोशल ग्रुप में, मतलब हमारे वो सोशल बॉन्ड्स, हमारे वो सोशल टाइज, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें पहला हम सुसाइड का टाइप पढ़ते हैं एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। मतलब जब इसमें इंटीग्रेशन, एक्सेसिव इंटीग्रेशन हो, हम बहुत ज़्यादा अपने सोशल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। व्हेन इंडिविजुअल्स आर टू डीपली इंटीग्रेटेड इनटू अ ग्रुप एंड सैक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर इट्स इंटरेस्ट। यहाँ पे वर्ड अल्ट्रुइस्टिक का मतलब, अल्ट्रुइज्म का मतलब यही होता है कि जो सैक्रिफिशियल इन नेचर होते हैं, अपने आप को ग्रुप के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि सोल्जर्स जंपिंग ऑन ग्रेनेड्स टू सेव कॉमरेड्स, तो ये सैक्रिफाइस है, अ वेरी ह्यूज सैक्रिफाइस। हिस्टोरिकल इंडिया में सती का प्रैक्टिस, तो इसमें जो ग्रुप आइडेंटिटी है इट ओवरराइड्स द इंडिविजुअल। एक्सेसिव इंटीग्रेशन की वजह से ये अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है। दूसरा है इगोइस्टिक सुसाइड, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, लो है, मतलब हमारे जो सोशल बॉन्ड्स और टाइज हैं बहुत कम है। इनसफिशिएंट इंटीग्रेशन विद सोसाइटी लीड्स टू इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन रिजल्टिंग इन आइसोलेशन। इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन क्या मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सोसाइटी में, कि जब सोशलाइजेशन पूरा हो जाता है तो इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है, लेकिन जब हमारा सोशलाइजेशन ठीक से नहीं हो, इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन हो, तो इंटीग्रेशन लो होता है, और जब ये बहुत ही कम होता है तो कंप्लीट आइसोलेशन में इंडिविजुअल रहता है। और इसको उन्होंने स्टडी किया, और उसके कुछ ग्रुप्स के बीच में ही हैड फाउंड सर्टेन रिजल्ट्स, जैसे कि मैरिड पर्सन विद चिल्ड्रन हैज मेनी टाइज इन हिज प्राइमरी ग्रुप, मतलब इंडिविजुअल उसके अपने फैमिली में ही बहुत सारे इसके टाइज होते हैं, एंड देयरफॉर अ लेसर प्रोबेबिलिटी टू कमिट सुसाइड देन अनमैरिड अ बैचलर। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन एक फैक्टर। और दूसरा फैक्टर है रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या होता है कि हाउ मच सोसाइटी कंट्रोल्स और गाइड्स आवर डिजायर्स एंड एक्शंस, कितना सोशल कंट्रोल है। और सोशल कंट्रोल जब बहुत ज़्यादा होता है तो फर्टिलिस्टिक सुसाइड होता है, और जब सोशल कंट्रोल इनसफिशिएंट होता है तो एनोमिक सुसाइड होता है। तो पहले हम देखते हैं फर्टिलिस्टिक सुसाइड, जहाँ पे एक्सेसिव रेगुलेशन है। सो इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज टू मच रेगुलेटेड बाय सोसाइटी। पीपल इन सच सिचुएशंस नो दैट देयर फ्यूचर, देयर लॉट वुड नेवर improve, hence they resign to their fate and commit suicide, for example in case of slaves. However, fatalistic suicide is now seen of historical importance as per Durkheim. तो ये हो गया फैटलिस्टिक सुसाइड जहाँ एक्सेसिव रेगुलेशन है, और फिर उसके बाद आता है एनोमिक सुसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, जिसमें इनसफिशिएंट रेगुलेशन होता है। सो विद इन सोसाइटी वेयर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैव क्रम्बल्ड एंड नथिंग हैज रिप्लेस्ड द ओल्ड टू एस्टैब्लिश ऑर्डर इन सोसाइटी। वैसे सिचुएशन में देयर कम्स अ फीलिंग ऑफ नॉर्मलेसनेस, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, फीलिंग ऑफ एमलेसनेस, dread, despair, and people feel a loss of meaning in their lives. ऐसे सिचुएशन को डर्कहाइम ने एनोमी कहा है, दैट इज नॉर्मलेसनेस को। तो अनोमी कब आता है? अनोमी अराइजेस ड्यूरिंग रैपिड सोशल चेंज, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो वैसे डिस्पेयर में पीपल कमिट सुसाइड एंड विच इज नोन एज अनोमिक सुसाइड। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स सिचुएशंस के दिए हैं दैट क्रिएट अनोमी, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक बूम में भी हो सकता है वैसा, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, माइग्रेशन, जॉबलेस, रिटायरमेंट, पोस्ट पैंडेमिक अनसर्टेनिटी। ये सभी जब बहुत बड़े चेंजेस आते हैं और पुराने स्ट्रक्चर को नया कुछ रिप्लेस नहीं कर पाता है, वैसे टाइम पे जब एक एमलेसनेस, नॉर्मलेसनेस वो आता है, उसको हम अनोमी कहते हैं वैसे सिचुएशन को। तो वहां पे इनसफिशिएंट रेगुलेशन में अनोमिक सुसाइड होता है। तो हमने 4 टाइप का सुसाइड देखा, अल्ट्रुइस्टिक, इगोइस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, फर्टिलिस्टिक एंड अनोमी विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे। Thus, by study of suicide, Durkheim unequivocally established sociology as science. But by completely ignoring motives and meanings attached to suicide by an individual, he was criticized by sociologists following phenomenological approach. तो क्रिटिसिज्म में हम देखेंगे जेडी डगलस, इनका क्रिटिसिज्म विथ रिस्पेक्ट टू सोशल मीनिंग्स ऑफ सुसाइड, ये ब्लू बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। He criticized method of data collection, where Durkheim had used coroner statistics to study patterns of suicide. According to Douglas, since it is secondary data and will have the inherent bias of coroner's understanding of suicide,
तो many a times the family is embarrassed or they want to protect the memory of the person, suicide is reflected as natural death. ऐसा कई बार होता है. Hence there is the question of reliability and validity of such data. तो यहाँ पे उन्होंने कोरोनर्स के अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुसाइड को डाउट किया है और ऐसे क्रिटिसाइज किया है. फिर सेकंड में है जॉन बैचलर, माफ कीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बट जॉन या जीन बैचलर, सुसाइड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो उन्होंने बताया कि सुसाइड कैन बी अडॉप्टेड व्हेन देयर सीम्स टू बी नो अल्टरनेटिव सोल्यूशन. तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन दिया सुसाइड का कि इट इज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन लाइक डर्कहाइम क्लेम्ड, बट एज अ रैशनल एक्ट टेकन व्हेन ऑल अदर ऑप्शंस सीम टू बी क्लोज्ड. तो since Durkheim was too much focused on structural causes like integration or regulation, instead Bachelor proposed that suicide is often a deliberate act done to solve a personal problem when no better option is visible. So he argued, like escapist suicides, for example, that suicide occurs when individual feels trapped, unable to escape through normal means like family support or therapy or financial help. So the person chooses suicide as a last resort, a problem-solving mechanism. नॉट ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ लो सोशल इंटीग्रेशन. ऐसा नहीं कि सिर्फ लो सोशल इंटीग्रेशन की वजह से ही हो और उसको हम खाली सोशल फैक्ट में ही देखेंगे. हम उसको एज अ रैशनल एक्ट, अ रैशनल डिसीजन के रूप में भी देख सकते हैं, वेयर बैचलर फोकसेस ऑन द एजेंसी ऑफ द पर्सन. मतलब उनके अपने पर्सनल रीजन पे वो फोकस कर रहे हैं, उनके इंडिविजुअल मोटिव पे फोकस कर रहे हैं. कुछ हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने का कोशिश करते हैं कि जो 4 टाइप के सुसाइड बताए गए हैं, इंटीग्रेशन और रेगुलेशन 2 फैक्टर के बेसिस पे, कि मतलब जब एक्सेसिव इंटीग्रेशन होता है तो अल्ट्रुइस्टिक टाइप ऑफ सुसाइड है, हमने पढ़ा था. तो जैसे कि उसमें एग्जांपल है सती, या केसेस वेयर इंडिविजुअल्स टेक देयर लाइव्स इन प्रोटेस्ट फॉर अ कलेक्टिव कॉज. ये आप एग्जांपल दे सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. दूसरा, जब इनसफिशिएंट इंटीग्रेशन हो, egoistic, जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन यूथ व्हेन फेसिंग आइसोलेशन, लैक ऑफ फैमिली कनेक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल कोटा या आईआईटी में जाके पढ़ने के दौरान भी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा सुसाइड किया जाता है. तो वो एग्जांपल आप दे सकते हैं. अब रेगुलेशन का फैक्टर देखें तो अगर एक्सेसिव रेगुलेशन होता है, दिस इज लेस डॉक्यूमेंटेड, मे बी इन केसेस आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स. इस केस में कि एक्सेसिव रेगुलेशन, एक्सेसिव सोशल कंट्रोल, डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स के द्वारा एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से फर्टिलिस्टिक सुसाइड किया जाता है. और फिर अनोमिक में जहाँ पे इनसफिशिएंट रेगुलेशन है, वहां पे हम फार्मर सुसाइड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ डेट ट्रैप, क्रॉप फेलियर, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. तो ये रैपिड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से रेगुलेशन डिसरप्ट होता है, इनसफिशिएंट रेगुलेशन होता है, और फार्मर सुसाइड उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं.